So, good evening, students. In today's lecture, we are going to solve the problems of two blocks passing through the two different pulleys and how the D'Alembert principle is going to be applicable for this question that we are going to see here, right? So, just read the question once. A block of mass m1 is 120 kg resting on an inclined plane is connected by an string and a system of pulleys to another block of mass m2 is equal to 80 kg as shown in figure. So data given is m1 is equal to 120 kg, m2 is equal to 80 kg. Asking determine tension in the string during the motion of the blocks and consider frictionless and massless pulley and mu is equal to 0.3, that is coefficient of friction is 0.3 between m1 and inclined plane. That means inclined plane is not frictionless, right? तो देखिए किस तरह से प्रोसीड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में. पहले आपको ये समझना होगा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विच ब्लॉक इज मूविंग डाउन और विच ब्लॉक इज मूविंग अप. सो फॉर understanding this, we have to assume first any block you can assume is moving down or any block you can assume moving up. So here first I am assuming let block m1 is moving in the downward side. तो अगर block m1 downward move कर रहा है with acceleration a, then what will be the relation of acceleration of block acceleration within the block of m1 and acceleration within the block m2. तो दोनों में क्या एक्सेलरेशन है दैट वी आर गोइंग टू फाइंड फर्स्ट. क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, देखिए कैसे निकालते हैं. लेट अस सपोज द डिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग इज एक्स. मैंने इसको क्या एज्यूम कर लिया, ये डिस्टेंस क्या है एक्स है. और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी. तो लेट अस से इट इज़ x1 पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज़ हियर x2. ये डिस्टेंस क्या है x2 है, दिस वन, एंड दिस इज ऑल्सो x2. तो x2 टू टाइम्स हो गया. टोटल डिस्टेंस क्या मिल गई मुझे यहाँ पर देखिए, इट इज़ x1 प्लस 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेट से l है. तो आई कैन राइट हियर dx1 बाई डी टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ dx2 बाई डी टी इज इक्वल टू dl बाई डी टी, राइट. L is the total length which is constant value, तो dl by dt constant का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा 0, एंड दिस कैन बी राइट एज 2x2 by dt. dx2 by dt is what? Velocity. Change of length with respect to time, differentiation dx by dt is velocity. It is first term is v1. मुझे मिला v1 plus 2v2 is equal to 0. Again differentiate this dv1 by dt प्लस 2 टाइम्स डी वी टू बाई डी टी इज इक्वल टू 0. यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0. आइदर a1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस a2 लिख सकते हैं. तो रिलेशन मुझे क्या मिल गया, a1 और a2 के बीच में रिलेशन मिल गया. दैट मीन्स लेट मी ड्रॉ फर्स्ट एफ बी डी ऑफ ब्लॉक m1. I am drawing FBD of block M1. तो देखिए कैसा बनेगा FBD of block M1. This is some inclined plane and block M1 of mass 120 kg is shown here. This is at an angle of 50 degree given in the question. तो मैंने एज्यूम किया कि दिस ब्लॉक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a एट द डाउनवर्ड. तो अगर पहले वाले का एक्सेलरेशन a है, a1 इज इक्वल टू a, देन व्हाट इज a2? a2 इज इक्वल टू माइनस a बाई 2. Means if a1 is coming, if block m1 is coming with the acceleration a downward, then block m2 will move upward with acceleration a by 2. तो क्या हो जाएगा देखिए FBD बनाते समय, its weight will be acting at the downward side. That means 120 into
या मैं M1 के हिसाब से लिख देता हूँ, M1G विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड. इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? दिस कॉम्पोनेंट विल बी इक्वल टू M1G cos 50 which will be balanced by its normal reaction N1 and a component in downward direction along the plane will be, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी M1G sin 50 and opposite components will be here, opposite force will be a tension force T which will be acting in this string. देखिए ये जो स्ट्रिंग है x1 पोर्शन, इस पर मैंने क्या मान लिया, टेंशन फोर्स क्या काम कर रहा है, T लग रहा होगा. दिस कंप्लीट सेट ऑफ ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन A. तो अगर ये पूरा एक सिस्टम है, इफ़ दिस इज अ कंप्लीट सिस्टम, तो अकॉर्डिंग टू D.L. Emberts व्हाट आई हैव टू डू फॉर मेकिंग इट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, आई हैव टू अप्लाई ए फोर्स, इनर्शिया फोर्स विच इज़ M1 टाइम्स A ऑपोजिट टू द मोशन. तो एक इनर्शिया फोर्स की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए. दिस इज़ द, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये क्या है मेरा, एक M1A एक इनर्शिया फोर्स है विच इज़ एक्टिंग एट द अपोजिट टू द मोशन. डॉटेड होना चाहिए क्योंकि ये स्यूडो फोर्स है, विजिबिलिटी के लिए ऐसा लिखा है. तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक M1, राइट, ब्लॉक M1. मैं यहाँ M1 भी लिख देता हूँ, M1. नाउ फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक 1, फॉर डायनामिक equilibrium of block M1, I am going to resolve the forces normal to the plane and in tangential direction. That means what I am saying here, see, along this one, ये क्या है मेरी नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स है, और ये Ft इज़ वॉट, फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो राइटिंग समेशन ऑफ फोर्सेज इन नॉर्मल डायरेक्शन इक्वल टू 0, क्या मिलेगा, लेट्स सी, N1 प्लस, नॉट प्लस, आई एम सॉरी, माइनस N1 माइनस M1G cos 50 is equal to 0. From here I can write N1 is equal to M1G cos 50. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स भी सरफेस और इंक्लाइंड सरफेस और ब्लॉक के बीच काम कर रहा है. सो आई इन माई फ्री बॉडी डायग्राम आई हैव टू ड्रॉ ए फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो. So let me draw it here. Since block is moving downwards, the friction force will be acting opposite to the motion, and this friction force I am writing F1, which will be equal to what, mu times N1, right? तो इंक्लूड करते हैं इसको, फ्रिक्शन फोर्स को. व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स F1 is equal to mu times N1 is equal to mu M1G cos 50. फ्रिक्शनल फोर्स हो गया. नाउ राइटिंग समेशन ऑफ फोर्सेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, दैट मीन्स along the plane and putting it equal to 0. तो देखिए क्या फोर्स मिल जाएगा, M1A प्लस T1 प्लस F1. These three forces are acting upside to the plane, minus M1G sin 50 which is acting downside of the plane is equal to 0. From here I can write T1 is equal to M1G sin 50 minus M1A minus mu times M1G cos 50. Let this is equation number 1. Now for pulley, I am considering pulley. Now for pulley Q, see in the figure, यहाँ देखिए फिगर में पुली Q ये दिखाई गई है.
तो आई एम ड्राइंग द एफ बी डी ऑफ दिस पुली. अगर मैं आपको दिखाऊं, आई हैव एज्यूम टेंशन T1 acting along this line and T2 will be acting in upward side T2, and here in this direction T2 will be acting like so. So let me draw FBD of pulley Q. तो अगर मैं FBD दिखाऊंगा, what will be here, see. This is pulley Q I have considered. Here T2 is acting at downward side and this one is T1. This is acting here is T1. तो देखिए क्या इक्वेशन लिखा जा सकता है यहाँ से. सिंस पुली इज अज्यूम टू बी मासलेस, तो अगर मैं इस पर ये न्यूटन्स का लॉ लगाऊं, F इज इक्वल टू ma, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए. देखिए 2T1 माइनस T2 इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली इज इक्वल टू मास m इज 0 इंटू एक्सिलरेशन ऑफ द पुली इज a/2 एट द अपवर्ड साइड. क्योंकि ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, अगर ये a एक्सिलेशन से डाउन जा रहा होगा, सो दिस कंप्लीट सिस्टम इज मूविंग विद a/2 अपवर्ड, जो कि मैंने अभी यहाँ आपको निकाल के दिखाया है. राइट, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको. तो यहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिल गया T1 और T2 के बीच में. आई गेट द वैल्यू ऑफ T1 इज इक्वल टू T2/2. T1 और T2 में टेंशन मिल गया. ठीक है. नाउ फॉर मास M2 in dynamic equilibrium situation, for let's say this is equation 2 मान लेते हैं इसको. mass M2 in dynamic equilibrium, अगर mass M2 dynamic equilibrium में है तो what will be the FBD of mass M2. let me draw. this is mass M2, its weight M2G is acting at downward side, tension T2 is acting at upward side, complete system is moving with acceleration a/2 upward, so therefore inertia force will be acting M2 times a/2 downward. So this for this system, let me introduce this inertia force is what basically. यहाँ देखिए, if I consider this complete mass is as a system, so under dynamic equilibrium I have to introduce an inertia force which is this one. यही है, देखिए ये डाउनवर्ड जो लग रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, M2 इंटू a/2 विच इज एक्टिंग एट डाउनवर्ड साइड. तो क्या हो जाएगा, समेशन FY की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि सिंस फोर्स इज एक्टिंग ओनली इन द y डायरेक्शन, तो My2 समेशन Fy इज इक्वल टू 0. This can be written as T2 minus M2G minus M2 into a/2 is equal to 0. T2 minus M2G and minus M2 into a/2 is equal to 0. Therefore, I can get T2 is equal to M2G plus M2 a/2. This is equation number 3. Right? Now putting the value of T1 and T2 from equation 1 and 3 in equation 2. मैं यहाँ से T2 की वैल्यू और यहाँ से T1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में यूज़ कर रहा हूँ. तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए आई विल गेट 2 टाइम्स M1G sin 50 माइनस M1A माइनस म्यू M1G cos 50. दिस इज द वैल्यू ऑफ हियर T1 is equal to T2/2. तो I have written 2T1 is equal to T2 is M2, यहाँ से बाहर लिख लिया G plus a/2. ठीक है. Now putting the values of all the given parameters, just simplifying in one more line. A times 2M1 plus M2/2 is equal to 2M1 sin 50 minus 2 mu M1 cos 50 and minus M2 into G.
ठीक है। तो मैंने रीअरेंजमेंट किया है पैरामीटर्स का। यहाँ से मैं वैल्यू डालता हूँ, a इंटू 2 टाइम्स m1 इज़ 120 प्लस m2 इज़ 80/2 विच इज़ नथिंग बट दिस इज़ 240 प्लस 40 इज़ 280 इज इक्वल टू 2 इंटू 120 sin 50 that I have to calculate by calculator minus 2 into 0.3 into 120 cos 50 minus 80, ये वैल्यू मुझे मिल गई टोटल, मल्टीप्लाइड बाई जी इज़ 9.81। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड वी विल गेट ए इज इक्वल टू 2.017 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ आस्क्ड। टेंशन पूछा गया है एंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, लेट मी सी। टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं यूज़ करता हूँ तो T2 इज इक्वल टू m2g प्लस m2a/g, इट वॉज द इक्वेशन, इज इक्वल टू 80 इंटू 9.81 प्लस 80 इंटू 2.017/2 इज इक्वल टू 865.48 न्यूटन। यहाँ से T2 आ गया एंड वी हैव इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ T1 इज इक्वल टू T2/2। फ्रॉम हियर यू कैन राइट 865.48/2 is equal to 432.74 Newton. So this is the required answer which was asked in the question. यहाँ से देखिए हमने डी एल एम्बर्ट्स का यूज़ किया है। इक्वेशन नंबर आइदर वी हैव रिटन 1, इस इक्वेशन को देखिए यहाँ डी एल एम्बर्ट्स इज़ यूज्ड, और इक्वेशन नंबर 3 वी हैव रिटन, यहाँ पर भी डी एल एम्बर्ट्स को यूज़ किया गया है। सो बाय दिस वी हैव सॉल्व्ड ए गुड प्रॉब्लम। एक अच्छा क्वेश्चन है ऑफ डी एल एम्बर्ट्स with block and pulley applications, pulley arrangement. So further in the next lecture we will cover few more examples and then we will come to the virtual work, either work energy principle first. Thank you.